بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمرا اس وقت اسکول میں موجود تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اسکول تھا اور اس عمارت میں گونگے اور بہرے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ سمرا بھی ایک گونگی لڑکی تھی اور یہاں پر اس وقت ٹیچر کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ جب چھٹی کی گھنٹی بجی تو سمرا نے بھی اپنی ضروری چیزیں بیگ میں ڈالیں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اسے ملازمہ نے کہا کہ پرنسپل صاحب نے سب ٹیچرز کو میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ یہ سن کر سمرا کوفت کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ پرنسپل صاحب میٹنگ بہت لمبی کرتے تھے۔ جب بھی وہ میٹنگ کرتے تھے تو ان لوگوں کو عموماً دیر ہو جاتی تھی۔ ان سب لوگوں پر ہی بیزاری سوار ہو جاتی تھی۔ اس وقت سمرا جھنجھلا کر رہ گئی تھی، کیونکہ گھر میں اماں اکیلی تھی اور اب ان کے کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا۔ سمرا گھر جانے کے بعد ہی ان کو کھانا کھلاتی تھی۔ وہ اس کا بھوکے پیٹ انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ سوچ ہی سمرا کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ فالج کی مریضہ تھی۔ وہ اپنی ضروریات کے لیے ہی مشکل سے چلتی پھرتی تھی۔ ان کے لیے کھانا بنانا یا گھر کے دیگر کام کرنا بہت مشکل تھا۔ ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے وہ سمرا کا ہی انتظار کرتی رہتی تھی۔ سمرا کے دماغ میں اس وقت یہی باتیں گونج رہی تھی۔ جب پرنسپل صاحب نے اپنی میٹنگ کا آغاز کیا تو انہوں نے گہری بھرپور نظر سمرا پر ڈالی۔ سمرا ان کی نظروں سے گھبرا گئی۔ اس نے دوپٹے کا پلو کچھ اور آگے سرکا کر اپنے چہرے کو گویا چھپا لیا۔ میٹنگ کے دوران بھی پرنسپل صاحب کی نظر گاہے بگاہے سمرا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سمرا بہت بری طرح گھبرا رہی تھی اور اس وقت تو اس کا آدھا دھیان تو اپنی ماں کی طرف تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ پرنسپل صاحب جلدی سے میٹنگ ختم کریں اور وہ گھر جا سکے۔ خدا خدا کر کے جب پرنسپل صاحب نے سب لوگوں کو جانے کا اشارہ کیا تو سمرا کے اٹھتے قدم رک گئے تھے۔ پرنسپل صاحب اسی سے مخاطب تھے کہ آئیے مس سمرا، آج میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سمرا کی آنکھوں میں خوف کے سائے پھیل گئے اور اس نے نفی میں گردن ہلا کر ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھا کر اسکول کی عمارت سے باہر آ رہی تھی، اس خوف سے کہ کہیں پرنسپل صاحب اس کے پیچھے ہی نہ آ جائیں۔ اسی دوران پرنسپل صاحب ایک اور ٹیچر کے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ وہ وقتی طور پر سمرا کو بھول گئے تھے۔ سمرا آج جب رکشے سے گھر آئی تو راستے میں بار بار اسے اسی نوجوان کا خیال آ رہا تھا جو ہمیشہ مشکل وقت میں اس کے کام آ جاتا تھا۔ اس کا چہرہ تو گویا اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد سب سے پہلے وہ اماں کے کمرے میں گئی اور دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ اماں سکون سے سو رہی تھی۔ اس نے اماں کے ماتھے پر پیار کیا، مگر اماں کو جگانا بھی ضروری تھا، کیونکہ وہ بھوکے پیٹ کیسے سو سکتی تھی۔ اس وقت وہ انہیں دوا کھلاتی تھی اور دوا ٹائم پہ کھانا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ تبھی جب سمرا نے انہیں جگایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگی کہ آج بہت دنوں کے بعد مجھے پرسکون نیند آئی تھی۔ یہ سن کر سمرا ہنس پڑی اور اشارے سے پوچھنے لگی کہ آج ایسی کون سی بات ہوئی ہے۔ اس کی ماں اس کے اشاروں کی زبان خوب سمجھتی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ہمارے محلے میں ایک نیا لڑکا آ کر رہنے لگا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ آج میں باتھ روم جاتے ہوئے گر گئی تھی۔ یہ سن کر سمرا کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے اور وہ بے چینی سے ان سے پوچھنے لگی کہ وہ اب ٹھیک ہیں، انہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اماں کہنے لگی کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے چوٹ نہیں آئی، بس وقتی طور پر میں ڈر گئی تھی کہ اگر میری کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو نہ جانے کیا ہوگا، اور اس وقت تم گھر پہ بھی نہیں تھی، اس لیے میں زیادہ ہی گھبرا گئی تھی اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تبھی وہ لڑکا جلدی سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسی نے مجھے سہارا دے کر کمرے میں بٹھایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے لیے کھانا لے کر بھی آ گیا تھا۔ اس قدر مزیدار کھانا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا۔ وہ بہت ہی اخلاق والا بچہ ہے۔ وہ کتنی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ یہ سن کر سمرا کے دل میں اس اجنبی کے لیے تشکر کے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے اشارے سے اپنی ماں سے پوچھا کہ کون ہے وہ، کہاں پہ رہتا ہے؟ اس کی ماں کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی، اس نے کہا تھا کہ ملک صاحب کے گھر میں وہ نئے کرایہ دار آئے ہیں۔ تبھی سمرا کو یاد آیا کہ ملک صاحب کا گھر یہاں سے 2 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ سمرا اسکول جاتے وقت وہ گھر کے دروازے کے باہر سے کنڈی لگا کر جاتی تھی، کیونکہ محلے کی کوئی نہ کوئی عورت اکثر اماں کے پاس آتی رہتی تھی۔ یہاں پر کوئی خطرہ بھی نہیں تھا اور ان کے گھر میں ایسا کچھ تھا بھی نہیں جو چوری کرنے کا خدشہ ہوتا۔ دوسرے دن جب سمرا اسکول سے
घर वापस आई तो अम्मा आज भी पुरसुकून नींद सो रही थी। वो हैरान रह गई थी, क्योंकि जब भी वो घर वापस आती थी तो अम्मा भूख से तड़प रही होती थी, और आज दूसरा दिन था जो अम्मा ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। समरा ने उन्हें जगाया और कहने लगी कि आज फिर वो लड़का मेरे लिए खाना लेकर आया था, आज भी मुझे भूख नहीं है। उसने खाना बहुत मजेदार बनाया हुआ था। समरा को यह सुनकर बुरा लगा और वो अम्मी को इशारे से कहने लगी कि रोज रोज किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता, आप उस लड़के को मना कर दें, ना जाने वो क्या सोच रहा होगा। समरा के चेहरे पर नागवारी के तासुरात देखकर उसकी माँ कहने लगी कि तुम गलत समझ रही हो, वो ऐसा लड़का नहीं है, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, और वो तो मुझे कहता है कि आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं, और आपकी खिदमत करके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ की खिदमत कर रहा हूँ। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेगा, बल्कि वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। ये सुनकर समरा चौंक पड़ी और सोचने लगी कि उस लड़के ने समरा को कहाँ देखा होगा। वो तो कभी मलिक साहब के घर वाली साइड पर कभी गई ही नहीं थी, मगर समरा को उस लड़के की अम्मा पर इस कदर इनायात अच्छी नहीं लग रही थी। तभी उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात देखकर उसकी अम्मा कहने लगी कि मैं फिर भी उस लड़के को मना करूंगी कि वो मेरे लिए इतना तरद्दुद ना किया करे, मेरी फिक्र करने के लिए मेरी बेटी मौजूद है। उन्हें आखिरी बात करते हुए अपनी बेटी पर बेतहाशा प्यार आ गया था, मगर अम्मा के मना करने के बावजूद भी वो लड़का हर रोज उनके पास आ जाता और उनके लिए खाना भी लेकर आता, और वो इस कदर मज़े का खाना होता था कि उसको खाकर अम्मा का कुछ और खाने को दिल ही नहीं चाहता था। उस दिन समरा को स्कूल से छुट्टी थी और वो सोचने लगी कि आज मैं देखती हूँ कि वो कौन है जो हर रोज यहाँ पर आता है। अब मैं उसे खुद ही कह दूंगी कि यहाँ पर मत आया करे। मगर ये ख्याल आते ही वो खुद ही अफसुर्दगी से मुस्कुरा पड़ी और सोचने लगी कि मैं उसे कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैं तो गूंगी हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकती, और मेरे इशारों की ज़बान तो सिर्फ मेरी अम्मा समझती हैं। अपनी ये कमी समरा को बहुत रुलाती थी और अपनी इस कमी की वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। समरा पैदाइशी तौर पर गूंगी थी। बचपन में उसके अब्बू ने उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की थी। डॉक्टर्स का ये कहना था कि वक्त गुजरने के साथ साथ समरा ठीक हो जाएगी, क्योंकि अगर वो सुन सकती है तो वो बोल भी सकती है, और मुनासिब इलाज से उसकी कुव्वते गोयाई लौट आएगी। उसका बाप उसकी कुव्वते गोयाई के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, अपनी पूरी कोशिश करता रहा। एक दिन वो ट्रैफिक हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके बाद समरा की माँ पर उसकी जिम्मेदारी आन पड़ी और वो एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करके अपना और बेटी का पेट पालने लगी। उसकी महदूद तनख्वाह में घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता था। ऐसे में समरा का इलाज करवाना तो ख्वाब बन गया था। उसके रिश्तेदारों ने उसकी तरफ से जैसे आंखें फेर ली थी। न मायके वालों ने हाल अहवाल पूछा और ना ही ससुराल वालों ने। हर तरफ से मायूस होकर समरा की माँ ने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था और उन्हें अब किसी से भी अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं रही थी। उन्होंने समरा को एक माजूर बच्चों के स्कूल में दाखिल करवा दिया था। समरा अब काफ़ी हद तक पढ़ने लिखने के काबिल हो गई थी और वो इशारों से अपनी बात माँ तक पहुँचाने लगी थी। उसकी माँ का बहुत दिल चाहता था कि उसकी बेटी भी नॉर्मल लोगों की तरह से ज़िंदगी गुजारे, मगर उसकी ख्वाहिश कभी भी पूरी ना हो सकी और उसकी बेटी माजूरी के साथ ही ज़िंदगी गुजारने लगी थी। यह भी गनीमत था कि घर अपना था और इसमें कोई हिस्सेदार न था। अगर इस महंगाई के ज़माने में अगर घर भी अपना ना होता तो अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाती। मगर जो जो वक्त गुजर रहा था वो बढ़ापे की जानिब सफ़र तय कर रही थी और अब तो परेशानी की वजह से उसका अक्सर बीपी हाई रहने लगा था और एक दिन उसका बीपी शूट कर गया था और उसे जिस्म के दाएं तरफ फालिज का एक ज़ोरदार अटैक हुआ, जिसके बाद वो चलने फिरने के काबिल तो रह गई मगर वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी। वो ज़रा सी बात के लिए दूसरों की मोहताज होकर रह गई थी। उस दिन वो फूट फूट कर रोई थी कि अब वो अपनी बेटी का ख्याल कैसे रख सकती है। मोहल्ले वाले बहुत अच्छे थे, वो माँ बेटी से हमदर्दी भी करते थे। काफ़ी हद तक मोहल्ले वालों ने ख्याल भी रखा, मगर कोई कब तक किसी के लिए कुछ कर सकता है। इस महंगाई के ज़माने में जहाँ अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल है, ऐसे में दूसरे घर की जिम्मेदारी उठाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वालों ने भी हाथ खींच लिया और जब समरा को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ा तो वो परेशान हो गई और एक दिन अपनी माँ से कहने लगी कि आखिर हम कब तक यूं मोहताजों वाली ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, आखिर हमारा भी तो ज़िंदगी की खुशियों पर हक है। उसकी माँ की आंखों से
टिप टिप आंसू बहने लगे थे। मैं क्या कर सकती हूँ, हमारा तो कोई भी नहीं है जो हमारा ख्याल रखे, हमसे हमारी ज़रूरत के बारे में पूछे। और अब तो मैं भी मेहनत करने से कासिर हो गई हूँ और तुम्हें मैं घर से बाहर कैसे कमाने के लिए भेज सकती हूँ। मगर यूं दोनों माँ बेटी भूखे पेट भी मर नहीं सकती थी। इसीलिए समरा ने फैसला किया कि अब उसे अपना माँ का पेट पालने के लिए खुद घर से बाहर निकलना होगा। मगर यह भी बहुत मुश्किल था। उसने तो कभी घर से बाहर कदम ही नहीं निकाला था। वो सिर्फ पढ़ने के लिए ही स्कूल में जाती थी और उसके अलावा वो घर से बाहर नहीं निकली और ना ही उसे लोगों को परखने का सलीका आता था। उसके पास ना हुनर था और ना ज्यादा तालीम थी। वो कोई नौकरी भी नहीं कर सकती थी, कोई काम काज भी नहीं कर सकती थी। ऐसे में एक दिन उसके जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो माजूर बच्चों वाले स्कूल में जाकर अपनी किस्मत आजमाई करे। उस दिन वो काले रंग का लिबास पहनकर काली चादर ओढ़कर अपने मोहल्ले की नई आंटी के साथ उसी स्कूल में आ गई थी जहां पर वो कुछ साल पहले पढ़ रही थी। उसकी गोरी रंगत उस काली चादर में खूब दमक रही थी और वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। उसको देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो एक माजूर लड़की है। वो कुव्वते गोयाई की सलाहियत से महरूम है। वो तो देखने में कोई अप्सरा लगती थी। आंटी के साथ जब वो उस स्कूल में पहुंची तो प्रिंसिपल साहब की आंखें उसको देखकर फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में इस कदर हसीन सूरत नहीं देखी थी। उसे भी ये जानकर धचका लगा था कि समरा एक माजूर लड़की थी। समरा के बारे में उसकी पड़ोसन ने प्रिंसिपल साहब को सब कुछ बता दिया था कि ये एक मजबूर और गरीब लड़की है और माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रिंसिपल साहब तो पहली नजर में ही समरा पर बुरी तरह से आशिक हो गए थे और बज़ाहिर हमदर्दी की आड़ में उन्होंने समरा को माजूर बच्चों को पढ़ाने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया था। चंद दिनों में ही प्रिंसिपल साहब को इस बात का अंदाजा हो गया था कि समरा एक गैर मामूली ज़हीन लड़की है जो ना सिर्फ बच्चों को अच्छे तरीके से अपनी बात समझा लेती है बल्कि उसने बच्चों के दिल में अपने लिए जगह भी पैदा कर ली थी। तमाम बच्चे समरा से ही पढ़ना पसंद करते थे और प्रिंसिपल साहब के दिल में समरा के लिए जो जज्बात पैदा हो रहे थे उन जज्बात को रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कई बार उन्होंने इशारों कनायों में समरा को अपने दिल की बात बताने की कोशिश की मगर समरा हमेशा कन्नी कतरा कर वहां से गुजर गई। वो प्रिंसिपल साहब की निगाहों का मफहूम इस तरह से समझ रही थी मगर वो यहाँ पर मुलाजमत करने पर मजबूर थी। उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्हीं दिनों प्रिंसिपल साहब पर उसकी मेहरबानियां हद से बढ़ गई थी और उस दिन तो उन्होंने हद कर दी। उन्होंने समरा का हाथ पकड़ लिया था। समरा ने बामुश्किल खुद को वहां से छुड़वाते हुए बाहर आ गई थी और अब वो तबीयत खराबी का बहाना बनाकर छुट्टी से कुछ टाइम पहले स्कूल की इमारत से बाहर आ गई थी। आज वो बहुत ज्यादा दुखी थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। वो सख्त परेशान थी कि वो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करे। वो चलते चलते सड़क किनारे लगे हुए बरगद के दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई। आज मौसम अबर-उलूद हो रहा था और बारिश बरसने को तैयार थी। समरा ने घबराकर मौसम के तेवर देखे। अब अगर बारिश बरस गई तो वो घर कैसे जाएगी और इस कदर सर्दी में वो इस दरख्त के नीचे कैसे खड़ी रह सकती है। वो यही सोच रही थी। शिद्दत से दिल में दुआएं मांगने लगी, काश बारिश उसके घर पहुंचने के बाद शुरू हो। मगर शायद उसकी दुआ में असर नहीं था क्योंकि बारिश तो तवातुर से बरस रही थी और वो खुद को सर्दी से बचाने के लिए अपने आप में सिमटी जा रही थी। बारिश भी मौसलाधार शुरू हो गई थी। उस वक्त उसके पास कोई सवारी नहीं आ रही थी। समरा दिल ही दिल में परेशान हो गई कि अब न जाने घर जाने के लिए कोई सवारी भी मिलेगी या यूं ही इस बारिश में खड़ा रहना पड़ेगा। तभी उसके पास एक रिक्शा आकर खड़ा हो गया। उस रिक्शे में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का बैठा हुआ था जिसका चेहरा बहुत नौरानी था। उसने रिक्शा समरा के बिल्कुल सामने आके रोका। समरा उस नौजवान को पहली बार देख रही थी और इस कदर हसीन नौजवान देखकर वो गोया अपनी जगह पर ठिठक कर रह गई थी। उसने जिंदगी में इतना हसीन इंसान पहली बार देखा था। उसका हैरान होना बनता था। तभी उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए समरा को कहा कि जल्दी से रिक्शे पर बैठ जाए, आपको देर हो रही होगी। अब समरा दिल ही दिल में परेशान हो गई कि वो इस रिक्शे में कैसे सवार हो सकती है क्योंकि वो जिस रिक्शे में आती जाती थी वो उसके मोहल्ले का ही था। उस रिक्शे वाले को उसका एड्रेस अच्छी तरह से पता था मगर ये रिक्शे वाला तो उससे अनजान था और समरा को तो बोलना भी नहीं आता था। वो कैसे रिक्शे वाले को अपना एड्रेस बता सकती थी। उसे गुम की कैफियत में खड़ा देखकर वो रिक्शे वाला मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आप क्या सोचकर परेशान हो रही हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सही सलामत आपके घर पर पहुंचाऊंगा।
समरा ने उसे बेयकीनी से देखा था। उसे समरा के दिल की बात कैसे पता चली थी? अब तो बारिश के साथ साथ बादलों की गरज चमक भी शुरू हो गई थी। समरा को हमेशा से ही बिजली की गरज चमक से डर लगता था। तभी वो जल्दी से रिक्शे में सवार हो गई थी और तब उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब रिक्शे वाले ने ऐन रिक्शा उसके घर के सामने रोका था। समरा उससे पूछना चाहती थी कि वो उसे कैसे जानता है, उसे कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पर आना है। इससे पहले कि वो रिक्शे से उतरकर उसकी तरफ जाती, वो फौरन से रिक्शा भगा कर ले गया था। समरा हैरत ज़दा से खड़ी उसे देखती रह गई और घर के अंदर दाखिल होते वक्त अच्छी तरह से भीग गई थी। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए और अपनी अम्मा के पास आ गई। उसके बाद उसकी निगाहों के सामने से कभी उस अजनबी मेहरबान का चेहरा हटता ही नहीं था और अक्सर सोते हुए उसके ख्यालों में, ख्वाबों में वही चेहरा आ जाता था। वो सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि बाज अजनबी लोग भी किस कदर अच्छे होते हैं जो इंसानों का ख्याल रखते हैं, और एक वो भी अजनबी था जो उसकी माँ का ख्याल रखता था। वो देखना चाहती थी कि वो मेहरबान कौन है। आज उसे छुट्टी थी तो आज उसने सारे घर के काम काज निपटा लिए थे जो एक हफ्ते से पेंडिंग आ रहे थे। सुबह से लेकर शाम हो गई मगर वो अजनबी मेहरबान घर पर नहीं आया। आज तो अम्मा भी उसे याद कर रही थी और बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि आज इतने दिन गुजर गए हैं, वो बिला नागा आता है और आज न जाने वो क्यों नहीं आया। अम्मा बार बार उसे याद कर रही थी। समरा को भी दिल ही दिल में इस बात का तजस्सुस तो था कि उसने सोचा कि कोई भी कब तक किसी की जिम्मेदारी उठा सकता है, उसे भी ज़रूरी काम होंगे। उसने अम्मा को भी यही बात समझाने की कोशिश की मगर अम्मा थी जो उसकी तमाम बातों को समझने के बावजूद भी उसे झुठलाती थी और कहती थी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, दुनिया में अच्छे इंसान अभी भी मौजूद हैं। हो सकता है उस बच्चे को कोई मजबूरी हो गई हो, उसकी वजह से वो आज नहीं आया, मगर मेरे लिए यही बहुत है कि वो जब भी मैं अकेली होती हूँ, परेशान होती हूँ, वो आकर मेरी ढारस बंधाता है, मुझे नए सिरे से उम्मीद दिलाता है, मुस्तकबिल के अच्छे सपने दिखाता है। तुम्हारे हवाले से मेरी बेचैनी, बेसुकूनी को दूर करता है और उसको मिलने के बाद से ही मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि काश तुम्हारी शादी मैं अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे ही जिम्मेदार इंसान के साथ कर सकूँ जो सारी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखे, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दे। समरा हमेशा उदासी से मुस्कुरा देती और सोचती कि लोग तो अच्छी भली लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनमें गुर्बत गायब होता है और वो लंबा चौड़ा जहेज नहीं दे सकती, और मैं तो फिर गरीब होने के साथ साथ एक माजूर लड़की हूँ, भला मुझसे शादी करके किसी को क्या मिलना। वो उदासी से इस बात को सोचती रही और शाम को थक हार कर जब वो सोई तो आज उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने सर दर्द की टैबलेट ढूंढी मगर उसे टैबलेट कहीं से नहीं मिली और सर को दोनों हाथों में थाम कर वो लेट गई। तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसका सर दबा रहा था। इसी कैफियत में ना जाने उसे कब नींद आ गई और आज भी ख्वाब में उसके संग दूर दूर तक घूमती रही। और अगले दिन से वो अपनी उसी रूटीन पर उठी, नाश्ता बनाया और अम्मा को नाश्ता करवाने के बाद वो स्कूल में चली गई। आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। छुट्टी का वक्त हुआ तो आसमान पर काली स्याह घटाएं फैल गई थी और अब तो बारिश भी बरसने लगी थी। समरा इस वक्त प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में थी, उनके बच्चों के टेस्ट दिखा रही थी और बेचैनी से पहलू बदल रही थी कि प्रिंसिपल साहब उसे जाने की इजाज़त देंगे। वो जानती थी कि जल्द ही पूरा स्कूल खाली हो जाएगा और यहाँ पर उसका अकेले रहना खतरे से खाली नहीं था। तभी उसे प्रिंसिपल साहब ने जाने की इजाज़त दी तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर आ गई, जैसे किसी कैद से रहा हो गई हो। लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंची तो दूर दूर तक कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी और सब बच्चे और टीचर्स अपनी अपनी मंजिल पर रवाना हो चुके थे। शायद आज मौसम के तेवर देखकर तमाम ड्राइवर हजरात जल्दी आ गए थे। समरा परेशान हो गई थी कि वो कैसे घर तक जाएगी और यहाँ पर खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं था। उसे प्रिंसिपल की नज़रों से खौफ आता था। जब भी वो मौसम की परवाह किए बगैर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी और फिर उस दरख्त के नीचे आकर वो खड़ी हो गई। सर्दी की शिद्दत से उसका बुरा हाल हो रहा था। ऊपर से वो बुरी तरह से खौफजदा भी थी कि ना जाने अब उसे घर पहुंचने में कितनी देर लगेगी, कोई सवारी भी मिलेगी या नहीं, और अम्मा का भूख से ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। उसे साथ घर की फिक्र भी सता रही थी। तभी उसके पास प्रिंसिपल साहब की गाड़ी आकर रुकी। उन्होंने समरा को कहा कि आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, स्कूल में ही रुक जाती और मेरे साथ वहाँ से आ जाती।
चले आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उनकी नज़रों में ना जाने ऐसा क्या था कि खौफ से समरा एकदम से कांप कर रह गई और इशारे से उन्हें कहने लगी कि मैं यहीं पर ठीक हूँ। मगर प्रिंसिपल तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बार बार एक ही बात का तकाजा कर रहे थे कि आपको आखिर मसला क्या है, कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी, जानती भी हैं कि आसपास कोई भी नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई आपको नुकसान पहुंचा दे। चले आए, मैं आपको घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। उसी दौरान वो रक्षा आकर रुक गया। समरा फौरन से रक्षे में सवार हो गई। प्रिंसिपल साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। उन्होंने एक कहर भरी नजर समरा पर डाली और गाड़ी आगे बढ़ा कर ले गए। रक्षे वाले ने भी गुस्से से प्रिंसिपल साहब को देखा था और कुछ भी कहे बिना समरा के घर के पास आकर रिक्शा रोक दिया और जन से रक्षा उड़ाकर ले गया। समरा आज भी सोचती रह गई कि रक्षे वाले ने उससे किराए के पैसे क्यों नहीं लिए। घर आने के बाद भी वो खुशकुन ख्यालों में खोई हुई थी। आज इतने दिन के बाद अपने सामने उसी लड़के को देखकर अजीब से तासुरात हो गए थे। उसके जहन में बार बार यही बात घूम रही थी कि यकीनन ये लड़का भी उसे पसंद करता है, जभी तो हर मुश्किल में उसको बचाने के लिए आ जाता है। मगर हैरत की बात यह थी कि आम रूटीन में उसे ये लड़का कहीं पे भी नजर क्यों नहीं आता था। यही सब सोचते वो अम्मा के कमरे में आई और आज उनके पास खाने के लिए एक ट्रे पड़ी हुई थी जिसमें गरम गरम पकौड़े थे। आज समरा का पकौड़े खाने का बहुत दिल चाह रहा था। वो हैरान सी अम्मा के पास आकर बैठकर कहने लगी कि पकौड़े कहाँ से आए। उसकी माँ कहने लगी वही लड़का देकर गया है जो रोजाना यहाँ पर आता है। उसका नाम वजदान है और वो मुझे बिल्कुल अपने बेटों की तरह लगता है। ना जाने ये वजदान कौन था जो इस मसरूफियत भरी जिंदगी में भी एक बूढ़ी औरत की तीमारदारी करने के लिए आ जाता था। अल्लाह उसे इस नेकी का अजर दे। समरा ने जब वो पकौड़े खाए तो उसे भी उनका जायका बहुत ही ज्यादा मुनफरिद और लजीज लगा। और फिर वो चाय बनाने के लिए उठ के किचन में आने के बाद जैसे ही उसने चूल्हे पर देगची रखी, उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने जब पलट कर देखा तो वही रक्षे वाला उसके पीछे खड़ा था, जो आंखों में ढेरों मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। समरा हैरान परेशान रह गई कि घर का दरवाजा तो बंद करके आई थी, फिर यहां पर यह कैसे आ गया। तभी पलकें झपकने पर उसकी नजर से ओझल हो गया। समरा ने अपनी आंखों को मसल कर देखा मगर वो कहीं पर भी नहीं था। वो इस बात पर खुद पर हंस पड़ी और सोचने लगी कि शायद वो उसके हवासों पर इस कदर मुसल्लत होकर रह गया है जो उससे हर जगह पर वही नजर आ रहा है। अगले दिन जब स्कूल गई तो उसे पता चला कि प्रिंसिपल साहब का कल बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और वो अब अस्पताल में है। तमाम टीचर्स उनको देखने के लिए जा रही थी। मजबूरन समरा को भी उनके साथ जाना पड़ा। प्रिंसिपल साहब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो इस कदर तकलीफ की शिद्दत में मुब्तला थे कि आज वो समरा को नज़र भर कर देखना जैसे भूल चुके थे। अब तो उन्हें अपनी ही फिक्र सता रही थी। उनको तकलीफ में देखकर समरा को दुख की बजाय अनजानी सी खुशी का एहसास हुआ कि अब वो काफ़ी टाइम तक स्कूल में नहीं आ सकेंगे और समरा उनकी गैर मौजूदगी में खुद को बहुत आज़ाद और पुरसुकून महसूस करती थी। और फिर कुछ दिनों के बाद से उनकी जगह उनकी बीवी ने संभाल ली थी। अब वही रोजाना स्कूल में आती थी। वो बहुत अच्छी, मेहरबान और शफीक खातून थी। समरा को उनके आने से अनजानी सी खुशी का एहसास हुआ था। एक बेचैनी और बेकली जो उसे अपने घेरे में लिए रखती थी, अब उसे उससे छुटकारा हासिल हो गया था और वो इस बात पर खुश थी कि अब उसे खुद को किसी की नज़रों से बचाने के लिए तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। अब काफ़ी दिनों से उसे वो रक्षे वाला कहीं भी नज़र नहीं आया था। उसकी नज़रें जैसे उसी को तलाश करती रहती थीं। आज जब वो घर आई तो अम्मा कहने लगी कि तुम भी ज़रा कोई चीज़ बनाकर मलिक साहब के घर जाके दे आना। अच्छा नहीं लगता कि वो बच्चा तो मेरा ख्याल रखने के लिए इतनी दूर से चला आता है और अपने ज़रूरी काम छोड़कर मेरे पास बैठा रहता है। अब ये तो उस बच्चे की मोहब्बत है। जब वो मेरी मोहब्बत में चला आता है, तुम किसी दिन उनके घर कोई अच्छी सी चीज़ बना कर दे आना। उसकी माँ का भी शुक्रिया अदा करना कि उसने अपने बेटे की इतनी अच्छी तरबियत की कि वो मेरा इतना ख्याल रखता है। समरा ने अम्मा की बात पर तायीद में सर हिलाया और वो खुद भी दिल ही दिल में यही चाहती थी कि वो किसी दिन उसके घर जाकर उसका शुक्रिया अदा करे, उससे ये कह सके कि वो उसकी अम्मा को अपना इस कदर आदी ना करे। उन दोनों माँ बेटी को इस चीज़ की आदत नहीं है। तभी अगले दिन उसने अम्मा की पसंद की बिरयानी बनाई और एक बड़ी सी प्लेट में सजाकर अपनी हमसाई को लेकर मलिक साहब के घर की तरफ आ गई। पूरा रास्ता वो अपनी हमसाई को यही समझाती रही कि उसने उस लड़के को क्या कहना है,
मगर उसकी हमसाई का कहना था कि इस तरह से कहना मुनासिब नहीं है। एक बंदा अगर आपके साथ खुलूस का मुजाहिरा कर रहा हो, उसका खुलूस उसके मुंह पर मार देना कोई अच्छी बात नहीं है। समरा उसे घूर कर रह गई। जवाबन उसकी हमसाई को खामोश होना पड़ा और कहने लगी कि ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही कह दूंगी। जब वो लोग मलिक साहब के घर पर पहुंचे तो ये देखकर वो कदरे परेशान हो गई, क्योंकि दरवाजे पर मोटा सा ताला झूल रहा था। समरा की हमसाई कहने लगी कि यहाँ पर तो ये मोटा ताजा ताला मुंह चढ़ा रहा है, लगता है घर वाले मौजूद नहीं है, अब हमें दोबारा यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तुम कहोगी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। समरा ने उसे इशारे से कहा कि किसी से पता तो करो कि ये लोग कहाँ पर गए हैं, कब तक वापस आएंगे, किसी न किसी को तो इनके बारे में पता होगा। उसकी हमसाई भी समरा का इशारा समझ गई और करीब से गुजरने वाले एक बुजुर्ग से कहने लगी कि ये लोग कहाँ पर गए हैं और कब तक आएंगे। बुजुर्ग हैरत से उन दोनों को देखने लगे और कहने लगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मलिक साहब तो कितने सालों से दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। समरा की हमसाई कहने लगी कि हम जानते हैं कि मलिक साहब दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं, हम उनके किराएदारों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। अब की बार वो बुजुर्ग झुंझुला कर कहने लगे कि यहाँ पर कोई किराएदार नहीं है और ये घर कई सालों से बंद पड़ा है, आपको गलत फहमी हुई है। वो दोनों अपना सा मुंह लेकर आ गई। पूरा रास्ता उसकी हमसाई बुड़बुड़ाती रही, तुम्हारी अम्मा को गलत फहमी हो गई होगी, उसने ना जाने किसका नाम लिया होगा, ना जाने कहाँ पर रहता है वो, और अम्मा ने समझ दिया कि वो मलिक साहब के घर में रहता है। आज का चक्कर तो बेकार ही गया, इतना मज़े का ड्रामा आ रहा था, तुम्हारे चक्कर में वो ड्रामा छोड़ना पड़ गया। मैं तो यहाँ पर किसी हीरो की तलाश में आई थी कि हो सकता है उस मेहरबान हीरो की मुझ पर नजर करम पड़े तो वो मुझ पर आशिक हो जाए, मगर खोदा पहाड़ और निकला चूहा, हीरो के बजाय यहाँ पर तो विलन भी नहीं मिला। अपनी हमसाई की बात सुनकर समरा जोर से हंस पड़ी और घर आने के बाद उसने अम्मा को इशारे से बताया कि वो वहाँ पर नहीं रहता। उसकी माँ कहने लगी कि उसने यही बताया था कि वो मलिक साहब के घर में रह रहा है। चलो कोई नहीं, अब जब आया तो मैं उससे दोबारा पूछ लूंगी। और दोबारा पूछने पर भी उसने यही बताया कि वो मलिक साहब के घर में ही रहता है। अम्मा यह सुनकर कहने लगी कि कल मेरी बच्ची तुम्हारे घर गई थी, वहां पर तो ताला लगा हुआ था और तुम्हारे हमसाए लोगों का कहना था कि वहां पर कोई भी नहीं रहता। ये सुनकर वो चुप रह गया और कहने लगा कि आपकी बेटी को गलत फहमी हुई होगी, मैं वहीं पर रहता हूँ। उस दिन समरा स्कूल में थी, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। प्रिंसिपल साहिबा बहुत अच्छी थी, उन्होंने जब समरा की तबीयत खराब देखी तो उन्होंने उसे छुट्टी दे दी और कहा कि तुम घर जाकर रेस्ट करो। समरा जब घर में आई तो अम्मा के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। वो कमरे में आई तो ये देखकर हैरान परेशान रह गई, क्योंकि उसके सामने वही रिक्शे वाला लड़का था जो मुश्किल वक्त में उसकी मदद करता था। तो ये था वो लड़का जो अम्मा की इस कदर खिदमत कर रहा था। वो लड़का समरा को देखकर पहले तो सटपटा गया, फिर मुस्कुरा कर देखने लगा। अम्मा कहने लगी कि आज तुम जल्दी आ गई हो। समरा ने उन्हें बताया कि उसकी तबीयत खराब थी और इतना कहकर वो किचन में चाय बनाने के लिए आ गई। आज उसका दिल गुनगुनाने को चाह रहा था। आज वो बहुत खुश थी। उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उसका दिल एक बहुत अच्छे इंसान पर आया है जो एक हमदर्द और नेक इंसान है, और यकीनन वो भी उसे पसंद करता है। तभी तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी माँ की इतनी मदद करता है। जब वो चाय बनाकर कमरे में आई तो वहाँ पर मौजूद नहीं था। अम्मा कहने लगी कि वो चला गया है, उसे ज़रूरी काम था। समरा का चेहरा बुझ कर रह गया और वो फिर अपने बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी, क्योंकि अम्मा खाना खा चुकी थी और उसका खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा था। अब अक्सर ही समरा का उससे सामना हो जाता था और वो उसे देखकर मुस्कुरा कर गुजर जाता था। समरा का बहुत दिल चाहता कि वो उसको देखती रहे और उसके सामने बैठा रहे, मगर ऐसा तो मुमकिन नहीं था। वो भला क्यों अपने सारे काम काज छोड़कर उसके सामने बैठ सकता था। समरा का बहुत दिल चाहता कि वो उससे अपने दिल की बातें करे। फिर ये सोचकर वो अफसुर्दा सी होकर मुस्कुरा देती कि उसे तो बोलना ही नहीं आता और वो उसके साथ बातें कैसे कर सकती है। उस दिन जब समरा घर में आई तो अम्मा सो रही थी और वजदान उनके सामने ही बैठा था। जो ही उसने समरा को आते देखा तो वो घर जाने के लिए उठ गया और फिर जाते जाते पलटकर समरा की तरफ आया। समरा उसी को देख रही थी। उसके यूं देखने पर उसने शर्मा कर नजरें झुका ली। वो कितनी देर तक नजर झपकाए बिना उसको देखता रहा। फिर उसे कहने लगा कि तुम कोई प्राइज बॉन्ड क्यों नहीं खरीद लेती, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल वक्त में इंसान के काम आ जाते हैं और ये भी पता नहीं होता कि कब इंसान की किस्मत उस पर मेहरबान हो जाए।
تمہیں پرائز بانڈ ضرور خریدنے چاہیے۔ سمرا نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا اور اگلے ہی دن اپنی سہیلی کو لے جا کر پرائز بانڈ بھی خرید لیے تھے۔ اس کے لیے تو وجدان کی کہی گئی بات حرف آخر تھی، اور وہ بھلا کیوں اس کی بات کو نظر انداز کر سکتی تھی۔ وجدان نے اسے پہلی بار یوں براہ راست مخاطب کیا تھا، اور اس کی بات تو گویا سمرا کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی جب وہ چھٹی کے وقت گھر آنے لگی تھی تو اسے اپنی سہیلی کی آواز، خوشی سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی سہیلی سے اشارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اس قدر خوش ہو؟ تبھی اس نے اس کے سامنے وہ اخبار کیا جس میں پرائز بانڈ کی مالیت کروڑوں میں تھی۔ وہ سمرا کو کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پرائز بانڈ کا نمبر یہی تھا۔ سمرا اتنی خوش فہم نہیں تھی، وہ مسکرا کر رہ گئی اور اخبار کو گھر لے آئی، اور پھر ایک خیال کے تحت اس نے جب پرائز بانڈ نکال کر دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ نمبر اسی ہی کا تھا، اور انعامی رقم دیکھ کر اس کا گویا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے اپنی نظروں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جب یہ بات اماں کو بتائی تو اماں بھی بے تحاشا خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ خدا نے میری سن لی ہے، اب تو میری تمام پریشانیاں جیسے دور ہو گئی ہیں۔ تمہارے حوالے سے مجھے بہت فکر رہتی تھی کہ تمہارا میں علاج کیسے کرواؤں، تمہاری شادی کیسے کروں، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے ہماری غیب سے مدد کی ہے۔ سمرا نے وہ تمام رقم لے کر بینک میں رکھ لی تھی، اور اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ اماں کا اچھا سا علاج کروائے گی، اور اماں چاہتی تھی کہ پہلے سمرا اپنا علاج کروائے، اسے اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائے۔ جب سے پرائز بانڈ نکلا تھا تب سے وجدان ان کے ایک بار بھی گھر نہیں آیا تھا۔ سمرا یہ خوشی کی بات اس کو بتانا چاہتی تھی، مگر وہ دشمن جاں تو اس کے بعد نظر ہی نہیں آیا تھا۔ سمرا نے اب اماں کا علاج کروانے کے ساتھ ساتھ اپنا چیک اپ ایک ڈاکٹر سے کروایا تو وہ کہنے لگی کہ تم ٹھیک ہو سکتی ہو، تمہاری قوت گویائی لوٹ سکتی ہے، بس اس کے لیے تمہیں پراپر طریقے سے علاج کروانا ہوگا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس علاج میں صبر و تحمل اور مستقل مزاجی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سمرا تو تھی ہی صبر و تحمل کا پیکر۔ اس نے ڈاکٹر کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ اس کا پورا ساتھ دے گی، اور اب تو اماں بھی تھراپی سے اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے کسی کے محتاجی سے نکل آئی تھی، اور اب تو وہ چھوٹا موٹا کام بھی کر لیا کرتی تھی۔ اس دوران سمرا نے معذور بچوں کے لیے ایک اپنا اسکول کھول لیا تھا، جہاں پر وہ ان بچوں کو تعلیم دیا کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں وجدان اس کی ماں سے ملنے کے لیے آتا رہتا تھا، اور ان کا خیال بھی پہلے کی طرح ہی رکھتا تھا۔ اب تو اماں بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ وہ وجدان سے ہمیشہ اسی بات پر اصرار کرتی کہ وہ انہیں اپنی ماں سے ملوائے، اپنے گھر لے کر جائے۔ وہ اس کی ماں سے ملنا چاہتی ہے، اور وجدان انہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا کرتا تھا۔ کافی سارے دن بیت گئے تھے۔ اب سمرا کا ایک آخری آپریشن ہونا تھا، اور اس آپریشن کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ وہ بولنے کے قابل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس بات کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ مسلسل یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ اسے ہمت دے، اگر اس کا آپریشن ناکام بھی ہو جاتا ہے تو اسے مایوسی اور نا امیدی سے دور ہی رکھے، کیونکہ وہ اللہ کی ناشکری کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ جبکہ اس کی ماں کا خیال تھا کہ جہاں اللہ نے اتنا کرم کیا ہے وہ سمرا کی یہ محرومی بھی دور کر دے گا اور اسے یہ نعمت بھی عطا کر دے گا۔ ڈرتے ڈرتے سمرا نے اپنا گلے کا آپریشن کروایا تھا۔ کچھ وقت تک ڈاکٹرز نے اسے بولنے کھانے پینے سے منع کر رکھا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، مگر ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ اور پھر جب ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے بولنے کی کوشش کی تو اسے اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی۔ وہ پہلی بار اپنی آواز سن رہی تھی۔ اسے خوشگوار احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے جذبات اور محسوسات کو الفاظ میں ڈھالنے کی صلاحیت حاصل کر چکی تھی۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ سمرا کے جاننے والے محلے والے تمام لوگ اس کو مبارکباد دے رہے تھے، اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی ماں بھی ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، اور اب تو سمرا کو لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، مگر بار بار اس کی نظروں کے سامنے وجدان کا چہرہ گھوم جاتا اور وہ یہ خوشی کی بات اس کو سنانے کے لیے بیتاب ہو جاتی۔ وجدان کو یہ بات بتانے کے لیے اس کی ماں بھی بیتاب ہو رہی تھی، اور وہ بھی چاہتی تھی کہ سمرا کی شادی وجدان سے کر دے۔ اس سے زیادہ نیک سیرت اور اچھا لڑکا انہیں کوئی اور نہیں مل سکتا۔ پھر یہی بات جب انہوں نے وجدان کے سامنے رکھی تو وہ خاموش ہو گیا، اور کافی دیر کے بعد جب وہ بولا تو اس کی بات سن کر اماں کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے اماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگا کہ بس آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میں مجبور ہوں، میں چاہ کے بھی یہ نہیں کر سکتا، اور میں
اب یہاں پر دوبارہ نہیں آ سکتا، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر انہوں نے خوشی سے وجدان کو جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد اماں کتنے دن تک اداس اور پریشان رہی۔ ان کے چہرے سے اداسی صاف نظر آتی تھی۔ جب بھی سمرا ان سے یہ بات پوچھتی تو وہ انہیں ٹال دیا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیا اور آہستہ آہستہ ان کی یہ اداسی اور پریشانی رفع ہو گئی۔ اس کے بعد اماں نے چند جاننے والوں سے سمرا کے رشتے کے لیے جب کہا تو سمرا حیران اور پریشان رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں چاہتی ہیں کہ اس کی شادی وجدان سے ہو، مگر حیا کی وجہ سے وہ اماں سے اس بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کر سکتی تھی، اور اب وہ شدت سے وجدان کی منتظر تھی۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وجدان کو اپنی پسندیدگی کے بارے میں آگاہ کر دے گی۔ اسے اماں پر حیرت ہوتی تھی کہ اب نہ تو وجدان کا نام لیتی تھی، نہ اس کی بات کرتی تھی، حالانکہ وجدان تو انہیں بہت پسند تھا۔ جب ایک دن سمرا نے باتوں باتوں میں اماں سے پوچھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ بس ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو جو اچھا لگے وہ اس کو حاصل ہو جائے۔ اماں کی یہ بات سمرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس نے وجدان کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ اسے بھی لگنے لگا تھا کہ وہ بھی اسے پسند کرتا ہے، مگر حیرت اس بات پر تھی کہ پسند کرنے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیوں نہیں کر رہا تھا۔ اب تو کتنے وقت سے وہ اس کے سامنے ہی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کبھی اماں نے اس کا نام لیا۔ ایک دن اس نے تمام شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ اس دن جب اسے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تو اماں لڑکے کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی۔ جب سمرا نے ان سے وجدان کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ پل کے لیے چپ کی چپ رہ گئی اور کہنے لگی کچھ باتیں چھپی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، مگر اب سمرا کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی اماں جو بھی بات ہے مجھے سچ سچ بتائیں۔ اس کی ضد دیکھ کر اس کی ماں کہنے لگی کہ دراصل وجدان ایک جن زیادہ تھا۔ اس دن جب تم بارش میں اس درخت کے نیچے کھڑی تھی تب اس نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس دن جب تم بارش میں اس درخت کے نیچے کھڑی تھی تب اس نے تمہیں دیکھا تھا۔ تبھی اس نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب تمہیں مشکل پیش آتی تو وہ تمہاری مدد کے لیے آتا تھا، اور میری خدمت بھی وہ اسی لیے کرتا تھا کہ تم میری وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ تمہارا سارا دن میری وجہ سے بے قلی میں گزرتا تھا۔ وجدان کی وجہ سے تمہیں میری طرف سے بے فکری ہو گئی تھی۔ سمرا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو بالکل انسانوں کی طرح دکھتا تھا، وہ ایک جنزادہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر ماں بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ان کی بات بھی سچ تھی۔ تب وہ اسے کہنے لگی کہ مگر اب وہ یہاں پر کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ اب اسے اس سے زیادہ تمہاری مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی دنیا میں بھی کچھ حدود مقرر ہیں اور وہ ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ اماں کی بات سن کر سمرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اس نے وجدان کے لیے کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا۔ اسے جب یہ بات پتہ چلی تو اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اماں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تمہارے دل پر کیا گزری ہے، مگر یہ بھی دیکھو کہ وہ بالکل ایک الگ مخلوق ہے۔ ایک جن اور انسان کا کبھی ملاپ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اسے ضرور منتیں کرتی کہ وہ تم سے شادی کر لے، مگر ایسا ممکن ہی نہیں تھا، اور اب تم بھی اسے بھول جاؤ۔ تمہاری شادی میں جس کے ساتھ کر رہی ہوں بہت اچھا انسان ہے۔ سمرا یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ وجدان تو نہیں ہو سکتا، مگر وہ اس کی زندگی سے، اس کی دنیا سے بہت دور جا چکا تھا۔ جاتے جاتے وہ اسے اس قابل کر گیا تھا کہ وہ کسی کی محتاجی سے بچ گئی تھی، اور جو اس کی ذات کی محرومی تھی اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو گیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا پڑی اور کہنے لگی کہ اماں پریشان نہ ہو، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ مگر یہ کہتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔